آج کے لیکچر میں ہم کلاس ڈائیگرام کو ریفائن کریں گے، اس میں سارے اس کے ایٹریبیوٹس اور ریلیشن شپس ڈیٹیل میں شو کرتے ہوئے، خاص طور پہ وہ سارے جتنے بھی آپریشنز ہیں، تاکہ کلاس ڈائیگرام کی مدد سے اوور آل جو فنکشنالٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ کیسے ہم اس کو ڈیزائن کریں گے۔ نارملی تو ہم یہ پہلے کر چکے ہیں، آپریشنز اور کلاسز وغیرہ کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا CRC کارڈز کی مدد سے، اور آج جو ہم سیکوینس ڈائیگرامز کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کو کیسے کیپچر کر سکتے ہیں، تاکہ جو سارے آپریشنز ہیں میتھڈز کی فارم میں ہم کیسے اسائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم ایک لائبریری سسٹم ہے جو ہم بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ لائبریری سسٹم کی کیا ورکنگ ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر کے اور اس کا دیکھیں گے کہ جی انالیسز کی جو آؤٹ پٹ ڈومین ماڈل ہے، یوز کیس ڈسکرپشنز وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے پھر ہم اس کو وہ ڈیزائن میں کیسے لے کے آئیں گے، اور پھر اسی کو وہ دیکھیں گے کہ جو کنسیپچل کلاسز ڈومین ماڈل میں ہم نے بنائی تھی اس کی، ان کو پھر ہم اس کو کیسے ریفائن کر کے سافٹ ویئر کلاسز کی فارم میں لے آئیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریفائننگ، اور جو بیسیکلی کلاس ڈائیگرام ہے امپلیمنٹیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے، بیس فارم کرتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی ڈیزائن جو بیسک ایکٹیویٹی تو یہی ہوتی ہے کہ جی ہم آپریشنز وغیرہ اسائن کرتے ہیں ساری وہ کلاسز میں اس طرح کو، اور اس کو بعض دفعہ کچھ کلاسز مسنگ بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے سارا کچھ ہی نا، تو وہ پھر میتھڈز وغیرہ جو ہے اسائن کر دیے جاتے ہیں، پھر اس میں جو ایٹریبیوٹس اور ایسوسیشن وغیرہ ان کو تفصیلاً جو ہے نا ڈپکٹ کیا جاتا ہے سارا کچھ نا۔ نارملی ڈیزائن میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ہاؤ پارٹ ہے بیسیکلی کرتے ہیں، انالیسز میں تو وٹ پارٹ بنیادی طور پہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی جتنے بھی ڈیسیجن لیتے ہیں ہم انالیسز میں وہ امپلیمنٹیشن انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ جو ڈیزائن میں ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں سافٹ ویئر کلاسز وغیرہ بنائیں گے ہم میتھڈز وغیرہ، ان کو پھر یہ مد نظر رکھتا ہے کہ ان کو پھر کسی آسانی کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جی ہم جو ایسوسیشنز وغیرہ ہیں وہ کیسے کریں گے تاکہ وہ ان کو آسانی سے امپلیمنٹ کیا جا سکے، پھر ایٹریبیوٹس وغیرہ کو، اور جو کلاسز وغیرہ، اور پھر ہم ایڈیشنل کلاسز وغیرہ بھی سولوشن اسپیس پہ ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں، اس طرح کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کیا تھا، بعد میں باؤنڈری کلاسز اور جو کنٹرول کلاسز ہیں وہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں، وہ ہم اس میں دیکھیں گے کیسے کریں گے ہم ایڈ۔ نارملی تو یہی ہے کہ یہ ریفائن کلاس ڈائیگرام تو ظاہر بیس ہوتی ہے، ایک تو اس میں کچھ کلاسز ایڈ کر دی جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے جو ایٹریبیوٹس وغیرہ ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، خاص طور پہ آپریشنز کی مدد سے، بعض دفعہ شروع میں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو آپریشنز وغیرہ جب آتے ہیں پیرامیٹر پاسنگ وغیرہ کے پرسپیکٹو میں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے کچھ نا، تو اس کو پھر وہ بیان کرنے کے لیے نارملی ڈپکٹ کرنے کے لیے ایٹریبیوٹ سگنیچرز ہیں جی، اس میں وہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں ڈیٹیل میں ایٹریبیوٹس کے سگنیچرز کو، اس کی ایک یومل فارمیٹ ہے نارملی، تو ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرنے کی ایک تو ویزیبلٹی ہے جی، ٹائپ ایکسپریشن انیشیل ویلیو بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں اس کی نا، اور اس کی یہ ایگزامپل ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس کا سمبل ہے ویزیبلٹی کا بھی دیکھیں گے، 3 طرح کے سمبل یوز کیے جاتے ہیں، یہ ڈپازٹ ہے، نیم آف دیٹ ایٹریبیوٹ، اس کی ٹائپ انٹیجر ہے اور اس کی انیشیل ویلیو 0 اس کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپریشن سگنیچر ہے جی، کہ کون کون سے پیرامیٹرز ہیں اور کیا ٹائپس ہیں اس کی، اور اس کی ریٹرن ویلیو کیا ہوگی سارا کچھ نا، تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ ویزیبلٹی نیم ہے، پیرامیٹر لسٹ ہے، اور ریٹرن ٹائپ دیا جاتا ہے سارا کچھ نا۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فائنڈ بائی کا جو ہم کیس اسٹڈی کر رہے ہیں، ہائر اینڈ رائٹ بائک والی کیس اسٹڈی ہم نے شروع میں ڈسکس کی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہمارے پاس ایک بنیادی طور پہ آپریشن ہے کہ فائنڈ بائک ظاہر ہے کہ بائک نمبر ہے اور ٹائپ اس کی انٹیجر ہے، اور ریٹرن بھی بائک نمبر اور بائک بھی کیا جاتا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم کیسے فیچرز کو ایکسیسیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارا کچھ نا، تو ویزیبلٹی بنیادی طور پہ جو ماڈلنگ اور پروگرامنگ میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی ایبلٹی شو کرتی ہے کہ جی ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے کون کون سے فیچرز ہیں اس کے، کون کون ایکسیس کر سکتا ہے سارا کچھ نا، تو اس میں پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کن کن آپریشنز کو ہم انیکسیسیبل کرنا چاہتے ہیں سارا کچھ نا، تو وہ ہے کہ جی وہ ڈیزائن میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں جو چیزیں ویزیبل ہیں تو انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے پرائیویٹ ہے تو نہیں کیا جا سکتا سارا کچھ نا، تو یہ جو ویزیبلٹی ہے بنیادی طور پہ کلاسز پہ اوور آل تو دیکھتے ہوئے ہم اپلائی کرتے ہیں ایٹریبیوٹس اور آپریشنز پہ، اور اسپیسیفائی کرتی ہے کہ جی کون کس کلاسز کے ایٹریبیوٹس اور آپریشنز کو کون کون سی دوسری کلاسز جن کے ساتھ اس کے لنکس ریلیشن شپ میں یوز کر سکتا ہے۔
कुछ ना। 3 तरह की विजिबिलिटी पॉसिबल है जी, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, फिर वो पता चल जाता था कुछ नहीं। ये पब्लिक है जी, इसमें रीयूजेबिलिटी होती है, एक्सटेंड टू अदर क्लासेस ही। दूसरी भी क्लासेस जाहिर है कि जिनके उस पर रिलेशनशिप्स में हैं, वो सारी क्लासेस इसके ऑपरेशंस या एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे ये बेसिकली सिंबल होगा। पब्लिक है, अवेलेबल फॉर एवरीवन, रीयूजेबिलिटी उस पर इन्हांस हो जाती है इसकी ना। दूसरा प्रोटेक्टेड है जी, रीयूजेबिलिटी इट मीन्स के जी जो क्लासेस इस क्लास पे जिसके ये ऑपरेशन पे या एट्रीब्यूट्स पे ये चीज़ है, विजिबिलिटी सिंबल है इसका प्रोटेक्टेड का, तो जो क्लासेस इनहेरिट करेंगी उसकी सब क्लासेस होंगी वो यूज़ कर सकती हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। बाद दफ़ा ये होता है कि क्लास सिर्फ अपने लिए चीज़ें ऑपरेशन वगैरह को डिफ़ाइन किए जाते हैं, तो फिर जो ओरिजिनल क्लास जिसमें ये डिफ़ाइन किए जाते हैं तो ये इट इज़ प्राइवेट टू दैट पर्टिकुलर क्लास। ये 3 बुनियादी तौर पे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली क्लास विजिबिलिटी के हवाले से। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पब्लिक है, एवरीवन कैन यूज इट, प्रोटेक्टेड के इनहेरिटेंट, ये जिस तरह कहते हैं खानदान के लोग यूज कर सकते हैं जी, जो भी उससे निकली हुई क्लासेस सब क्लासेस। प्राइवेट है ये सिर्फ उसी क्लास के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है नेम क्लास का कुछ ना उसका सेंटर एंड सेंटर एक्स वाई है, नॉर्मली देखते हैं प्राइवेट है, सिर्फ इसी के पास है, उसने ड्रॉ करना। प्लस ड्रॉ ऑपरेशन है जी, प्लस मूव ऑपरेशन है। प्लस मीन्स के जी यहाँ पे ये है कि जी एवरीवन कैन डू इट ना। मूव जो है ना बुनियादी तौर पे यही क्लास जिसमें ये डिफाइन किया जा रहा है या उससे जो चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं क्लास वो कर सकती है। अभी तक हमने जो ऑपरेशन वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं, देखना होता है, ख़ास तौर पे तफसीलें जब हम देखते हैं, रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको फिर कंप्लीट किया जाता है कुछ ना। तो अब हम देखेंगे कि जी थोड़ा सा और क्लोजली कि ये जो ऑपरेशन हैं मोर स्पेसिफिकली प्रिसाइजली जो है ना उसको कैसे हम बयान करें, डिस्क्राइब करें खोल के, ताकि जो है हमें वो जो ऑपरेशन हैं जो सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करने के लिए, एग्जीक्यूशन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए आसानी से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें साहब। उसके लिए एक तो ये है कि जिसको डिफाइन किया जाता है पैरामीटर्स वगैरह, टाइप्स वगैरह। दूसरा फिर वो अभी अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम उसकी जो डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिदम्स वगैरह, उसका ज़ाहिर है कि जो ऑपरेशन बेसिकली स्मॉल प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेसेस होते हैं, उसको फिर हम बुनियादी तौर पे जो डॉक्यूमेंट करते हैं, डिज़ाइन डिसीजंस वगैरह जितने भी हमने लिए होते हैं वो फिर एक्टिविटी डायग्राम में शो कर देते हैं। वो बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोसेसेस की है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में, अगर उसमें ज़्यादा कुछ डिसीजंस वगैरह डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज की फॉर्म में, वो नॉर्मली आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, दूसरे खास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर लैंग्वेजेस में ये नॉर्मली सूडो कोड, फ्लो चार्ट्स और डिसीजन टेबल्स की नॉर्मली फॉर्म में उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, ताकि उसको बड़ी आसानी के साथ एल्गोरिदम को हम नॉर्मली कन्वर्ट कर सकें। ये जी जो ऑपरेशन है बुनियादी तौर पे तो प्रॉब्लम डोमेन में होते हैं, वो मतलब साइज और शेप्स हो सकती हैं, उसकी डिपेंड करता है कि जी कौन कौन से ऑपरेशन है डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग ना। बाद दफ़ा वो जो ऑपरेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसी प्रॉब्लम डोमेन में ही आते हैं सारा कुछ ना। तो बाकी जो है नहीं इसमें फिर हमें जब भी डिज़ाइन करने हमने ऑपरेशन वगैरह, तो इनकैप्सुलेशन और रीयूज को जो हमने ब्रेन में रखा था, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सारी चीज़ें जो है कपलिंग कोहीन के इश्यूज भी हमने डिस्कस किए थे ना। तो यहाँ पे यही होता है ऑपरेशन है जी, कुछ तो जो ऑपरेशन होते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स के लिए ही होते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए होते हैं। कुछ जो है इंटरनल इवेंट्स के लिए, इंटरनली कुछ क्लासेस एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं उनके हवाले से किया जा सकता है। सो हम जो इसकी सारी डिटेल्स हैं हर ऑपरेशंस की, यूएमएल डायग्राम्स और दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिस तरह फ्लो चार्ट है उसका यूएमएल का तो हिस्सा नहीं है, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह हम कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे ये है कि जी कुछ तो जो जी इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट होते हैं वो नॉर्मली लिस्ट नहीं किए जाते, ज़ाहिर के ऑब्जेक्ट्स वगैरह की क्रिएशन इनिशिएशन के हवाले से अगर आप देखते हैं ना कि जी क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, सर्च फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल दिस, गेट एंड सेट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज ना, ये सारी इम्प्लिसिट चीज़ें होती हैं। उसमें एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन से ही पता चल जाता है कि क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके नाम से बाद दफ़ा विजिबल हो जाए। बाद दफ़ा ये डोमेन स्पेसिफिक होती है, रजिस्टर फॉर कोर्स है, ड्रॉप कोर्स है, रिक्वेस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स है, पेज स्टूडेंट्स फीस एंड ऑल दिस। ये देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल देखते हुए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर प्रॉब्लम डोमेन में हमने ऑपरेशन है कैलकुलेट माइल्स ड्रिवन है जी, उसमें नॉर्मली ये दिया हुआ है टोटल माइल्स वगैरह जो बेसिकली आ जाएंगे इसके ना,
تو یہاں پہ آٹوموبائل ہے جی، بگننگ موبائل، اینڈنگ موبائل، کیلکولیٹ یہ اس کا آپریشن ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹ کم جو ہے نا اس کی اس فارم میں آ جاتی ہے. تو وہاں پہ ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں چھوٹا سا ایک سمپل کیلکولیشن کا. لیکن بعض دفعہ بڑوں کے لیے پھر آپ کو دوسرے میکانزم کرنے پڑتے ہیں. اب آتے ہیں جی جو ڈیزائن میں جو اصل ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا یہ ساری رسپانسبلٹیز اور ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے کہ کون کون سی کلاسز کے کیا کیا ریلیشن شپ اور کون کون سی کلاسز کون سے آپریشن بہتر طور پر پرفارم کر سکیں گی. اس کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پہلے ہم کر چکے ہیں سی آر سی کارڈز کی فارم میں. جی آج ہم دیکھیں گے سیکوینس ڈائیگرامس کی یوز کرتے ہوئے، خاص طور پہ اس کیس اسٹڈی کے حوالے سے کہ یہ سیکوینس ڈائیگرامس میں ظاہر ہے کہ ایک سیکوینس ہوتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کلاس ہے، کون سے آبجیکٹس کی مدد سے کون سے آپریشن پرفارم بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. سیکوینس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جی، اور سیکوینس ڈائیگرامس ساری ایک یوز کیسز کی اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کلاس کی اوور لوڈڈ تو نہیں ہے، زیادہ تو نہیں پرفارم کری، تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے بٹوین کلاسز نا. اس کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جی کیسے سیکوینس ڈائیگرامس کو یوز کرتے ہوئے ہم آپریشنس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. اس کی کیس اسٹڈی ہم نے یہ ہے کہ لائبریری سسٹم ہم سارے ہی فیملیئر ہیں جی لائبریری سسٹم کے حوالے سے. جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اس میں پھر ہم تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن دیں گے اور یوز کیس ماڈل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر اس کا جو ڈومین بیسک کلاس ڈائیگرام، پھر ہم دیکھیں گے سیکوینس ڈائیگرامز ہیں جو سیدھا یوز کیس ڈسکرپشنز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم سیکوینس ڈائیگرامز ہیں. اور پھر ان سیکوینس ڈائیگرامز کی مدد سے ہم جو ہے نا ریفائن کلاس ڈائیگرام، اس میں ساری ہر کلاس کی جو بیسک ایٹریبیوٹس اور جو آپریشن ہیں وہ ان کو ہم ڈیفائن کریں گے. یہ بزنس پروسیسز اگر دیکھتے ہیں لائبریری سسٹم کو ہم اس طرح سمرائز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جی اگر آپ دیکھیں تو ایک لائبریری میں بکس ہوتی ہیں، بکس وغیرہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسی طرح ممبرس ہیں، شروع میں تو نہیں ہوتے تو پھر ممبرز ایڈ کیے جا سکتے ہیں. ہاں کچھ نا وہ بکس ایشو ہوتی ہیں ممبرس کو، پھر ممبرز بکس کو ریزرو بھی کر دیتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہولڈ پہ رکھی جاتی ہیں بکس. ہاں کچھ نا ممبرز جو ہیں بکس وہ واپس بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ بکس جو ہوتی ہیں پرانی ڈیمیج ہو جاتی ہے، ان کو پھر ریموو بھی کر دیا جاتا ہے لائبریری کیٹلاگ وغیرہ سے. تو یہ بیسک ایکٹیویٹیز ہیں. اور نارملی لائبریری سسٹم جو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی جو سسٹم کے ساتھ یوزرز جو اس کے ممبرز ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں انٹریکٹ کرتے. نارملی تھرو کلرک اور لائبریری اسسٹنٹ یا اسسٹنٹ لائبریرین کے ذریعے جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے کہ جی بکس وغیرہ جو سرچ کر کے نارملی ممبر ہے وہ بکس لائبریری ڈیسک پہ دیتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہو ساری جو پروسیسنگ وغیرہ ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی اگر اس کا جو انٹرفیس کا مینیو جو بنانا چاہیں گے ہم وہ چیزیں آئیں گی اس میں سارا کچھ ہے نا کہ جی یہ بنے گا کہ جی ایڈ ممبر، یہی بنیادی طور پہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں اسی کو ہم نارملی یوز کیس ماڈل بناتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ یوز کیس ڈائیگرام ہے. ایڈ بک ہے، ایڈ اے ممبر، ظاہر ہے ایشو بک ہے، ریٹرن بکس ہے، ریموو بکس ہے. جس طرح میں یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں ہولڈ پہ کی جا سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ جی نارملی پرنٹ آؤٹ ممبرس ٹرانزیکشن جس کو ہم بعض دفعہ یہاں پہ ہمارے یہاں گیٹ پاس کہتے ہیں. نارملی وہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ گیٹ پاس وغیرہ کی ضرورت نہیں، ٹرانزیکشن وغیرہ، لیکن مینٹین کی جاتی ہے ساری ٹرانزیکشن. جو اسٹور ہوتا ہے کہ جی کون سی بک کس ممبر کے پاس اور ممبرس کے پاس کتنی بکس ایشوز ہیں، کیا کیا ڈیٹس ہیں، کی ساری انفارمیشن. ظاہر ہے سارا کچھ ہی جو سیو بھی کیا جاتا ہے جو بھی چیزیں جاتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک سمپل سا یوز کیس ماڈل بنے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یوز کیس کو دیکھتے ہوئے یہ ہے جی سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں کلرک کی سارا کچھ کر رہا ہے، ایڈ ممبر سے لے کے ریموو بکس، ایڈ بکس اینڈ دین آف کورس ہولڈ آن اینڈ دین پروسیس ہولڈ. یہ ساری چیزیں ہم یہ چند جو ہے نا یوز کیس ڈسکرپشن کی. ظاہر ابھی جو ہم نے بات بھی کی ہے کہ جی اس کو پھر بعض دفعہ یوز کیس ڈسکرپشن 2 کالم میں جو لکھی جاتی ہے بہتر طور پہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ کہ دیکھتے ہوئے کہ جی کلرک کے کیا ایکشنز ہیں ان کو لکھ لیا جاتا ہے، پھر جو سسٹم کے کیا رسپانسز ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں واپس یوز کیس ایڈ ممبر ہے. جی ایڈ ممبر میں یہی ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ آپ نے فارم فل کرتے ہیں، پیپر بیس بھی ہو سکتا ہے، آن لائن بھی ہو سکتا ہے. اس کو سامنے دیکھتے ہوئے جو کلرک ہے نارملی وہ ڈیٹا انٹر کرتا ہے انٹرفیس کے ذریعے اور اس کی مدد سے سسٹم ظاہر ہے کہ جی وہ فارم فل ان ہے نارملی ایکٹیویٹی اس میں سارا کچھ کر دیتا ہے. کلرک جو بھی سارا انٹر کرتا ہے
और फिर जो सिस्टम उसको देखते हुए और उसको एक नंबर एलोकेट कर देता है, उसका जो लाइब्रेरी का आईडी बन जाती है, और फिर जो है ना वो देखते हुए उसको वेरीफाई करते हुए उसको पास ऑन किया जाता है। ये सारा एक सिंपल सा है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ये ऐड बुक्स हैं, ज़ाहिर है कि बुक्स आती हैं, कैटलॉगिंग वगैरह हो चुकी होती है, उसके लिए ज़ाहिर है कि ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, वो ऐड बुक्स हैं, वो भी क्लर्क करता है सारा कुछ ना। रिक्वेस्ट टू ऐड न्यू बुक, चीज ज़ाहिर है बुक के हवाले से अगर वो सिंपल रखा जाए तो ये ऑथर नेम है, बुक का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें, और उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो वो फिर देखते हुए एंटर करता है, और इसमें से फिर वो एक ज़ाहिर है कि लूप में जाती हैं चीज़ें, एक ही गो में नॉर्मली एक एक करके ज़ाहिर है कि बुक्स एंटर की जाती हैं। ये उसका नॉर्मली यूज़ केस है जिसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। इसी तरह जो इशू बुक्स हैं जी, यहाँ पे फिर वो देखा जाता है कि जी बुक्स इशू वो भी एक से ज़्यादा होती हैं सारा कुछ ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी इसके तवज्जो से हम कुछ चीज़ों को देखते हुए रिक्वेस्ट करता है सारा कुछ ना। ज़ाहिर है कि जी मेंबर की आईडी है, फिर बुक आईडी, वो सारी इन्फॉर्मेशन पे स्टोर कर ली जाती है, और उसमें डेट ऑफ रिटर्न वो भी इंडिकेट हो जाती है, पता चल जाता है, और बुक का स्टेटस चेंज हो जाता है कि जी बुक अगर वो पहले अवेलेबल थी तो अब वो बुक है नॉर्मली वो नॉट अवेलेबल। इसी तरह उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। वो एक से ज़्यादा बुक्स हैं तो हमने देखा है कि जी इशू बुक्स आपने भी देखा होगा, ये सारे इश्यूज हैं नॉर्मली। और दूसरा है कि जी रिटर्न बुक्स हैं जी। रिटर्न बुक्स में हमें देखना होता है कि जी आपने देखा होगा कि अगर बुक्स है कुछ, जाहिर है कि बुक अगर इशू हुई होती है तो उस बुक में ये नॉर्मल कंसिडरेशन होती है, अगर किसी ने बुक को रिजर्व की हुई है, होल्ड पे रखी हुई है, तो जब वो बुक रिटर्न होती है तो नॉर्मली वो थोड़ा सा उसको लदा करके रख लिया जाता है, वो शेल्फ पे नहीं भेजी जाती, और उसके लिए फिर उसको फिर प्रोसेस भी किया जाता है कि जी अगर ये बुक किसी ने रिजर्व की थी तो उसको फिर इंटीमेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बाद दफ़ा ईमेल पे, बाद दफ़ा कार्ड के ज़रिए, आजकल तो ईमेल और मैसेजिंग के ज़रिए किया जाता है। तो इस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन फिर वहाँ पे लिखा जाता है कि ये अगर तो बुक जो है किसी ने रिजर्व होल्ड पे थी तो उसको फिर शेल्फ पे नहीं रखा जाता, उसको वो स्टेटस उसका अवेलेबल नहीं होता, वो फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। ये थोड़ा सा उसके रिटर्न के हवाले से डिस्क्रिप्शन है, कुछ नहीं। फिर रिमूविंग बुक्स है जी, बाद दफ़ा बुक्स हैं रिमूव कर दी जाती हैं कि डैमेज है, बाद दफ़ा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि बुक डैमेज है, तो उसके हवाले से बुक्स रिमूव की जाती हैं। और नॉर्मली यहाँ पे भी थोड़ी सी कंडीशन होती हैं कि जी सिर्फ वही बुक्स रिमूव की जाती हैं जो बुनियादी तौर पे तो होल्ड पे भी नहीं होती और वो इशू भी नहीं हुई थी किसी को। ये नहीं कि जी बुक वैसे इशू हुई है तो लाइब्रेरी से कैटलॉग से रिमूव कर दिया जाए ना, तो उसका जो इशू है वही है, सिस्टम चेक करता है कि सारा कुछ ना, रूल वगैरह भी हमने कहा था कि जी बुक के लिए कि जी लाइब्रेरी कैटलॉग में नहीं होनी चाहिए सारा कुछ ना, तो उसको देखते हुए ये इंटरेक्शन हो जाती है सारा कुछ रिमूविंग बुक से। तो हमारे पास मेंबर्स की जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं जी वही है कि जी रिक्वेस्ट मेंबर ट्रांजेक्शन, वो सारी ट्रांजेक्शन नॉर्मली सेव भी हो जाती है, बाद दफ़ा प्रिंट भी किया जा सकता है उसका ट्रांजेक्शन, जिसको हमारे यहाँ बाद दफ़ा गेट पास भी कहते हैं। तो यही है कि ये ट्रांजेक्शन की कितनी बुक्स इशूज हैं, और साथ वो शख्स बुक्स को बाहर लाइब्रेरी से ले जा सकता है। यहाँ पे वो देखते हैं कि जी उसका अगर जाहिर है कि जी यूज़ केस मॉडल के बाद हम डोमेन मॉडल की तरफ आते हैं। और नॉर्मल जो मोटी मोटी बात तो यही है कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी में मेंबर्स होते हैं, मेंबर जो हैं बुनियादी तौर पे जो है ना बुक्स को बारो करते हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके शुरू में कि ये एनालिसिस की स्टेज पे डोमेन मॉडल क्रिएट करते हुए, तो यहाँ पे ये है कि जी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है क्लासेस को और रिलेशनशिप्स का आपस में, जिसको हम शो करते हैं एसोसिएशंस क्लासेस के दौरान कौन कौन सी हैं। और बुनियादी तौर पे तो हम नाउन एनालिसिस ही करते हैं, रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़ केसेस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए फिर हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, और या फंक्शनैलिटी ब्रेकअप किया जा सकता है कि ये मोटी मोटी जो सब फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको ब्रेकअप कर लेते हैं, बड़े सिस्टम्स को करना पड़ता है। इसी तरह उसका जो स्ट्रक्चर व्यू है और बेसिक क्लास डायग्राम हम बुनियादी तौर पे बना लेते हैं। अगर हम देखते हैं इसका जो ओवरऑल वर्क फ्लो सारा कुछ ये इसकी जो बिजनेस लॉजिक है फंक्शनैलिटी की, नॉर्मली तो यही है कि जी मेंबर्स बुक को बारो कर सकते हैं सारा कुछ, और इसमें एक अच्छा खासा रिलेशनशिप नज़र आता है हमें, मेंबर बारो बुक्स हैं। इसी तरह लाइब्रेरी मेंटेन करती है बुक्स को, लाइब्रेरी मेंटेन करती है मेंबर लिस्ट को, मेंबर्स जो हैं वो बारो करते हैं बुक्स को, मेंबर रिटर्न करते हैं, मेंबर बुनियादी तौर पे बुक्स को होल्ड भी करते हैं ज़्यादा कुछ ना। तो इसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। लाइब्रेरी में किताबें हैं, लाइब्रेरी में मेंबर्स हैं, मेंबर बारो करते हैं, रिटर्न करते हैं, होल्ड करते हैं। इसको देखते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ना हमारी जो कंसेप्चुअल क्लासेस बनेगी
वो बुनियादी तौर पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं सारा कुछ ना। तो ये जी हमारे पास एक तो लाइब्रेरी क्लास बनेगी, लाइब्रेरी हैज बुक्स ना, तो साथ में एट्रीब्यूट्स, बाद दफ़ा ये कि एट्रीब्यूट्स आईडी है, टाइटल, ऑथर, एक ही ऑथर को हम डिस्कस कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, एक ये बन जाएगा। इंक्रीमेंटली अगर हम करते हैं तो इसी तरह लाइब्रेरी मेंटेन्स करती है मेंबर्स की लिस्ट को जी, ज़ाहिर कलेक्शन ऑफ मेंबर्स का उसके पास वो आ जाती है इन्फॉर्मेशन। फिर इसी तरह के जी जो मेजर एक्टिविटी है मेंबर बारो होल्ड बुक्स है जी, तो आ जाएगा कि मेंबर बारो बुक्स है, ज़ाहिर है कि मेंबर की आईडी है, नेम, एड्रेस, एट्रीब्यूट्स के हवाले से हम देख लेते हैं। और यहाँ पे फिर है कि ये मेंबर होल्ड्स अ बुक, रिजर्व अ बुक ना, ये सारी चीज़। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो बेसिक एक्टिविटी नज़र आती है, ओवरऑल बिहेवियर आता है सारा कुछ ना, वो देख सकते हैं कि जी ये ओवरऑल जो डोमेन मॉडल बनेगा, जिसको हम बेसिक क्लास डायग्राम भी कहते हैं उसके शुरू के लेक्चर्स में, तो ये है जी ओवरऑल इसका सिस्टम का जो एक्टिविटी है, वर्क फ्लोस है कि लाइब्रेरी has members, library has books, members borrow books, members holds on books and all these things ना। तो ये सिंपलेस्ट है जी ओवरऑल वर्क फ्लो के देखते हैं डोमेन को शो करने के पर्सपेक्टिव में ना। हम इसी को फिर बुनियाद बनाते हुए आगे चलेंगे कि जी डिज़ाइन एक्टिविटीज़ करेंगे सारा कुछ ना। तो ये है जी हमने जो बेसिक क्लास और कंसेप्चुअल डिज़ाइन है कि ये कंसेप्चुअल क्लासेस क्रिएट की हैं अभी तक हमने। तो हम यहाँ पे हम वो डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हाउ पार्ट है। अभी तक तो ये व्हाट एक्टिविटीज़ है ना, हाउ टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी इश्यूज हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे। लाइब्रेरी सिस्टम को अगर आप देखते हैं तो एक तो दो हिस्सों में ये इस पे बुनियादी तौर पे सब सिस्टम्स कह लें, इसको तकसीम किया जा सकता है। एक इंटरफेस पार्ट है कि जहाँ से क्लर्क इंटरेक्ट करता है, बाकी जो इंटरनल एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह अभी बात की थी हमने कि जी बुक जब नॉर्मली रिटर्न की जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स भी हो रही होती हैं कि चेक करता है सिस्टम कि जी बुक वो होल्ड तो नहीं, रिजर्व तो नहीं की किसी ने, अगर रिजर्व की है तो उसको फिर अवेलेबल स्टेटस नहीं सारी पीछे। तो ये उसकी जो ओवरऑल है, तो इसका दो बुनियादी तौर पे हिस्से हैं, बिजनेस लॉजिक उसकी और यूज़र इंटरफेस है। बिजनेस लॉजिक तो हमारे पास वही है कि जी डील्स ऑल द डेटा इन क्रिएशन है, क्वेरीज है, डेटा इनपुट्स एंड ऑल द थिंग्स ना। और जब यूज़र इंटरफेस है वो एक्टर के साथ ही इंटरनली इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नली फॉर एक्सेप्टिंग एंड आउटपुटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र एंड ऑल द थिंग्स ना। यूज़र इन दिस केस ऑफ द सिस्टम विल बी द लाइब्रेरी असिस्टेंट, द लाइब्रेरी क्लर्क, which will be able to interact on behalf of the user for issuing and returning books ना, और placing books on hold। ये है जी सारा कुछ ना। हम फिर अब मूव करते हैं जी कंसेप्चुअल क्लासेस टू बट सॉफ्टवेयर क्लासेस। उसको जाहिर है कि डिटेल फ्राहम करेंगे कि हाउ पार्ट में कि जी क्लासेस किस तरह कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी, फिर तफसील और डिटेल डिज़ाइन में आ जाएगी कि जी वो जो हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं जिनको मेथड्स नॉर्मली कहा जाता है वो के पर्सपेक्टिव में जो सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेस उनकी डिटेल है। यहाँ पे वही है कि जी मोटी मोटी बातें कि जी उसका नाम क्या होगा, क्या फंक्शनलिटी होगी, और फिर वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो सॉफ्टवेयर क्लासेस हैं जिससे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनको फिर बाद दफ़ा ये कंक्रीट क्लासेस भी कह सकते हैं कि जी नॉर्मली के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का बुनियादी तौर पे हिस्सा बनते हैं। दो मेजर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं इस स्टेज पे। यहाँ पे हमारे पास है कि जी वी मे हैव टू ऐड कोई नई क्लासेस भी ऐड करनी पड़ती हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, बाद बाउंड्री एंड कंट्रोल क्लासेस को। बाद दफ़ा पर दूसरा पार्ट ये है कि जी हमें जो क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ती है कि जी कौन कौन से मेथड्स और जो ऑपरेशन हैं वो कौन कौन सी क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस ना, वो नॉर्मली हम असाइन करते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो ये क्लास डायग्राम उसको रिफाइन कर सकें और कंप्लीट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जी जो बिजनेस लॉजिक है मॉड्यूल जो अभी हमने देखा था, उसके हवाले से हम देखनी पड़ती हैं कि जी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जितनी भी हमें मिलती हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़ की फंक्शनलिटी की, हम तो फिर यहाँ पे देखेंगे हाउ वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड दीज एक्टिविटीज़ ना। तो यहाँ पे ये है कि जी एक तो सबसे मोटी बात है कि जी अलहदा कर लें कि हम यूज़र इंटरफेस क्लास डिफाइन कर देते हैं और यूज़र इंटरफेस सब सिस्टम्स ना। दूसरा ये है कि जी हम वही यूजर्स जो हमने अभी सॉफ्टवेयर क्लासेस वगैरह क्रिएट करने के लिए हम वो बिजनेस लॉजिक की सब सिस्टम्स हैं वो हम देखेंगे कि जी अभी हमने जो अपनी जो कंसेप्चुअल क्लासेस और रिलेशनशिप्स वगैरह उनको हम क्लोजली स्क्रूटनाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या एडिशंस करनी पड़ेंगी और क्या क्या क्लासेस हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास ये क्लासेस मेंबर है, बुक है, लाइब्रेरी है, ये तो काम होगा ही होगा जी, क्योंकि लाइब्रेरी ने बुनियादी तौर पे
ये सारी क्लास ने मेंटेन करने हैं बुक्स को, और बुक्स के हवाले से भी ज़ाहिर है कि उसके इंस्टेंसेस होंगे बुक्स की क्रिएशन के करते समय। इसी तरह मेंबर्स हैं मेंबर लिस्ट के फॉर्म में, तो ये तो तीनों क्लासेस जो भी हमारे पास थी वो हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो रहेंगे सारा कुछ ही सिस्टम का हिस्सा रहेंगी, क्योंकि मेंबर भी है, बुक भी है, और लाइब्रेरी मेंटेन करती है सारा कुछ ना, ये सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट एंड ऑल दिस थिंग्स ना। तो वहाँ पे फिर हमें देखना होगा कि ये इन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं। फिर आगे आते हैं वापस होल्ड है जी, जाहिर है कि जिसका भी आपस में रिलेशनशिप है वो मेंटेन किया जाता है कि जी सारी बुक्स तो नहीं, कुछ बुक ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्मली होंगे वो होल्ड पे होंगे, और उसको जाहिर है कुछ मेंबर्स होल्ड करेंगे, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बारोस बुनियादी तौर पे एक्टिविटी है जी, बुनियादी तौर पे नाउन तो नहीं है बेसिकली। बारोस बेसिकली जिस तरह हमने वहाँ पे डोमेन मॉडल में किया था, तो ये हम उसको नई क्लास कंसिडर करेंगे, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जी और क्या कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि हम देखें कि ये हम अपनी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म कर सकें सारा कुछ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने दो क्लासेस ऐड की हैं जी, एक मेंबर लिस्ट और कैटलॉग है। जाहिर है कि सारी बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो इशू करते समय सर्च करना पड़ता है, सर्च ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसके लिए फिर ये सारी इंफॉर्मेशन बुक्स की वो एक कैटलॉग हम बुनियादी तौर पे एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, जिसके सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन होगी अबाउट डिफरेंट बुक्स ना। इसी तरह मेंबर्स है जी, तो मेंबर लिस्ट है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये है जी चार पहले वाली थी, एक हमने यूजर इंटरफेस की क्लासीफाई किया, एक मेंबर लिस्ट एंड कैटलॉग ना, ये हमारे पास आ जाती थोड़ा सा ना। तो हम देखते हैं कि जी कैटलॉग पे भी सर्च ऑपरेशन ऐड डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कैटलॉग बुक्स वगैरह का, इसी तरह मेंबर लिस्ट में भी ऐड मेंबर, तो ये सारे जो ऑपरेशन है इस पे किए जाएंगे ताकि इस क्लास के जो मेंबर्स ऑब्जेक्ट हैं इसमें नॉर्मली ऐड होते हैं। तो आप रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं कि इनका आपस में हमें नज़र आ रहा है, उसको हम एक्सपेंड करेंगे ना। अगली बात हम करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली कैसे हम असाइन करेंगे। ज़ाहिर है कि उसको फंक्शनलिटी वर्क फ्लो देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस लॉजिक है, कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी करती हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट पर्पस तो जो क्लासेस का है ये फंक्शनलिटी फ्राहम करना होता है कि जी नॉर्मली जो फंक्शनलिटी हमने यूज़ केसेस की फॉर्म में डिस्क्राइब की हुई है उस फंक्शनलिटी को सामने रखते हुए हमने देखना होगा कि जी हम कौन कौन सी क्लासेस को कौन कौन सी जिम्मेदारियां असाइन करें ताकि ये सारी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें सिस्टम के हवाले से ना। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यूज़ केसेस में हमने स्पेसिफाई की हुई हैं, तो वो यही है, दो तरीके हम ये पहले कर चुके हैं। हम आज जो है ना सीक्वेंस डायग्राम्स, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली डिटेल फ्राहम करती है, और उनको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि जी हम जो है ना वो ये है कि जी इम्प्लीमेंट करते समय तो ये है कि जी हम देखते हैं कि जी जितने भी यूज़ केस डिस्क्रिप्शन है हमने अभी देखा 2 कॉलम साइड पे है सारा कुछ ना। राइट साइड के कॉलम पे हम देख लेते हैं कि जी वो कौन सी है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं सिस्टम ने करने होते हैं, तो वहाँ पे फिर देखते हैं कि जी कैसे ये ऑपरेशन जो है ना कैरी आउट किए जाएंगे, और इसके लिए हम जो बुनियादी तौर पे सीक्वेंस डायग्राम देखेंगे, और इन सीक्वेंस डायग्राम में हम ऐड मेंबर वाली, ऐड बुक वाली, इशू बुक्स वाली जो सारे यूज़ केसेस हैं उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे, और वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि जी जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो किस ऑपरेशन, ज़ाहिर है मैसेजेस पासिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है जिसको हम मैसेजेस कहते हैं, तो वो कौन सी ऑब्जेक्ट है, क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, किस किस्म के ऑपरेशंस हैं, और कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे ताकि जो सारी एक्टिविटीज़ है वो बुनियादी तौर पे परफॉर्म हो सके। वो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी हम ये सारी चीज़ें, ये ऐड मेंबर का जी हम अभी अब देखेंगे क्विकली कि ऐड मेंबर का हमारे पास वो है यूज़ केस डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके सामने रखते हुए हम इसकी सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे, और फिर सीक्वेंस डायग्राम से हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो और मिलेगी सारा कुछ ना। सो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी जो है ना कैसे ऐड मेंबर में, जाहिर है कि जी ऐड मेंबर के लिए डेटा क्रिएट किया जाएगा, एक नया मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो जो बुनियादी तौर पे मेंबर लिस्ट का हिस्सा बनेगा सारी कुछ चीज़ें ना। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना यूज़र इंटरफेस जो हमने अभी यूज़र इंटरफेस क्लास की थी, एक्टर विल बी स्टार्टिंग इंटरेक्शन विद द यूज़र इंटरफेस, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी वो कैसे है कि जी बिजनेस प्रोसेसेस में, बिजनेस लॉजिक में उसका यूज़र इंटरफेस का नहीं है, वो मीडिएटर है नॉर्मली चीज़ें लेके आगे पास ऑन करने के हवाले से ना। तो यहाँ पे ये है जी इसका क्लर्क जो है इशू करता है रिक्वेस्ट,
सिस्टम को कि एक नया मेंबर ऐड करना है। फिर उसके बाद ये नॉर्मली सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है कि ये उसके लिए डेटा फ्राहम करे, और न्यू मेंबर के हवाले से वो क्लर्क फिर एंटर करता है। और जो इंटरेक्शन है बुनियादी तौर पे लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर और द यूज़र इंटरफेस के इंस्टेंस के हवाले से यहाँ से शुरुआत होती हैं चीज़ें। फिर आगे वो लाइब्रेरी के पास जहाँ डेटा सारा कुछ हम देख सकते हैं कुछ सीक्वेंस के पर्सपेक्टिव में ना, डेटा विच एक्सेप्ट सी फिर आगे पास ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी यूज़र इंटरफेस क्लास है, फिर लाइब्रेरी क्लास है, अब फिर ये मेंबर लिस्ट है जी। यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि जी ऐड मेंबर है, इंटरफेस ने का रिक्वेस्ट की है सारा कुछ ना, डेटा रिक्वेस्ट है, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर है जी। यहाँ पे तो जी ये जो बुनियादी तौर पे ये ऐड मेंबर ऑपरेशन है जी, ये बुनियादी तौर पे लाइब्रेरी का है, ये सिर्फ उसको कॉल कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे तो ये बिजनेस लॉजिक है, लाइब्रेरी क्लास में इसके ऑपरेशन आएंगे सारा कुछ। ऐड मेंबर है जी, उसके जाहिर है कि ऐड मेंबर के साथ पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स ना। यहाँ पे फिर वही है कि जी मेंबर नेम मेंबर लिस्ट में देखते हुए कि ये नहीं है, तो यहाँ पे फिर जो है ना कि ये मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे उसकी इनिशिएशन हो रही है। तो यहाँ पे फिर वो मेंबर्स पे सारा कुछ ऐड करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट मेंबर लिस्ट में। तो यहाँ पे उसने लाइब्रेरी ने इंडिकेट किया कि ये मेंबर एंड देन ऑफ कोर्स वन विल बी एबल टू लुक इनटू। यहाँ पे फिर वही मेंबर उसने कहा कि जी मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। यहाँ पे फिर वही है कि जिस मेंबर को फिर कहा कि जी इंसर्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे फिर वो मेंबर लिस्ट ने बुनियादी तौर पे उसको परफॉर्म करते हुए अपने में एंटर कर लिया। तो यहाँ पे ये है कि जी इंसर्ट मेंबर, और यहाँ पे कोई सारी इन्फॉर्मेशन वापस आई है, और द रिजल्ट है कि जी द मेंबर हैज़ बीन क्रिएटेड। आप देखते हैं कि यहाँ पे हम साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड करें कि ऐड मेंबर है, ज़ाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन डेटा पास ऑन हुआ है, मैसेज कम्युनिकेशन हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सारा कुछ ना। नॉर्मली तो जो यूज़र इंटरफेस है उसका जो क्लास का यूज़र इंटरफेस का बुनियादी तौर पे तो मकसद है कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना और बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करने का नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ने जो सारी बेसिकली यहाँ पे ऐड मेंबर वगैरह सारे जो है एक्टिविटीज़, वो नॉर्मली मेंबर लिस्ट में मेंबर को ऐड करना सारा कुछ ना, वो फिर इसको यूज़र इंटरफेस के पास बिजनेस लॉजिक इज मेंटेन विद इन दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी क्लास। तो ये उसके ऑपरेशंस आएंगे जिसको हम असाइन करते जाएंगे बाद में। दूसरा हमारे पास है जी, हम देखते हैं कि जी ऐड मेंबर मेथड्स कौन कौन से हैं। 3 मेथड्स इसमें स्टेप्स किए थे। क्रिएट अ मेंबर ऑब्जेक्ट है जी, एड द मेंबर द लिस्ट है, फिर रिटर्न द रिजल्ट्स ऑपरेशन ऑल दिस थिंग्स ना। तो हम देखते हैं कि जी जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो हमने देखना होता है कि जी वो कैसे किए जा सकते हैं सारा कुछ ना। तो यहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें जो है ना जी मेंबर्स की ऐड मेंबर्स हैं वो लाइब्रेरी के हवाले से आएगा, और लाइब्रेरी को देखते हुए सारा कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे फिर ये है कि जी पर्पस जो है मेंबर लिस्ट का बुनियादी तौर पे तो वही है जी, वर्क एज ए कंटेनर टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जी। और उस पर जो ऑपरेशंस यही एप्लीकेबल है सारा कुछ ही, ऐड न्यू मेंबर्स, रिमूव एग्जिस्टिंग वंस एंड परफॉर्म ए सर्च ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें उस पर की जा सकती हैं ना, कॉन्स्ट्रक्ट्स वगैरह कौन से हैं नॉर्मली मेंबर्स के हवाले से किए जाते हैं और वहीं पे फिर इन्वोक होती हैं चीज़ें। आगे देखते हैं दूसरा ऐड बुक्स है जी। जाहिर है कि इसमें एक से ज़्यादा होंगी बुक्स वगैरह, नॉर्मली इंसर्शन है, आर्बिट्री नंबर ऑफ बुक्स की जा सकती हैं सारा कुछ ना। तो यहाँ पे फिर एंड पे जो रिजल्ट निकलता है वही यही है कि जी उस पे एंड पे जो रिजल्ट है ना वो वही है कि जी request is made by the actor, in this case the clerk, the system enters a loop। जाहिर है कि ये एक से ज़्यादा करें तो लूप हमें पता है कि डिस्कस किया था कि सीक्वेंस डायग्राम में लूप भी शो करने का रेक्टेंगल में किया जाता है ना। ऑपरेशन जो है ना बुनियादी तौर पे डेटा करने के लिए उसमें ये कि ये बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जाहिर है कि नई बुक ऐड की जा रही है, ऐड बुक ऑब्जेक्ट कैटलॉग में फिर आ जाता है जी सारा कुछ, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो कौन कौन सी क्लासेज हैं नॉर्मली वो जो ऑफर पे होती हैं वो इनिशिएट करती हैं शुरू में, फिर उसके बाद इन बिटवीन भी कुछ क्लासेज इनिशिएशन होती है ऑब्जेक्ट वगैरह जिस तरह बुक क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे ये ऐड बुक का यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी कैटलॉग है, 3 तो मेन है। यहाँ पे फिर बुक का जो जिस तरह अभी हमने मेंबर का देखा था इंस्टेंट क्रिएट होता है क्लास इन्वोक होके, तो यहाँ पे भी वही है डेटा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वह है कि टाइटल ऑथर एंड बुक है, एंड देन
in this case book title, ये भी लाइब्रेरी का, ये ऐड बुक का था कुछ ना, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ अ कैटलॉग में ये क्रिएट किए जाएंगे, कैटलॉग में ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट बुक है वो, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज बीन क्रिएटेड, और ये यहाँ पे फिर आ जाएगा बुक है। तो यहाँ पे फिर एक ऐड मोर बुक्स है, अगर तो यस है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं है तो देन ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल विल बी नॉर्मली डन पे आ जाएगा। फिर देखते हैं हमारे पास रिमूव बुक्स है जी, अगर ऐड का किया था रिमूव बुक्स के हवाले से भी वो हमने देखा था कि जी जो कंडीशन हमने डिस्कस किया तो वेरी करता है, रूल्स वगैरह क्या है और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो उसको देखते हुए रिमूव बुक्स का भी यही आता है सारा कुछ ना, रिमूव्ड द न्यू बुक ना, सारा कुछ ना, बुक इज रिमूवेबल, जाहिर है कि बुक इशू नहीं होनी चाहिए, बुक नॉर्मली होल्ड पे नहीं होनी चाहिए, तभी हम रिमूव कर सकते हैं सारा कुछ ना। इन क्वेश्चन वो देखते हो अगर तो सेटिस्फाइड है सारी प्रॉपर्टीज, फिर रिमूव किया जाता है सारा कुछ ना। तो यहाँ पे फिर वही है कि जी अभी हमने पिछली एग्जांपल में आपको देखा था हमने कि हमारे पास था कि जी इन एक गिवन सीक्वेंस किस तरह इस स्टेज पे एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट होता है, यहाँ पे क्रिएशन होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो ये उसका खास सिंबल है। सीक्वेंस डायग्राम हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं सीक्वेंस डायग्राम वाले लेक्चर में। यहाँ पे भी वही ये डेटा रिक्वेस्ट है जी, बुक आईडी है जी, रिमूव बुक आईडी है, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था कुछ ना, वहाँ पे कैटलॉग में वो सर्च करेगा जी सारा कुछ ना, सर्च बुक आईडी है, कुछ उसका होल्ड पे तो नहीं है चीज़ है, फिर वो जो अभी बताया था कि दो चेक किए जा रहे हैं कि जी बुक जो है बुनियादी तौर पे मेंबर ने बारो तो नहीं की हुई था, कुछ दोनों चीज़ों चेक करते समय अगर वो ट्रू है तो फिर उसको बुक को बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इट मींस डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर एंट्री ना, डेटा के हवाले से अगर आप देखते हैं। और फिर वो भी ये कंटिन्यूशन में सारा कुछ लूप में, ये हमने देखा हुआ ये लूप है जी, रिमूव बुक के ऑपरेशन इन्वोक किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंटरफेस एंड मेनली परफॉर्म्ड बाय द लाइब्रेरियन, क्योंकि सारी चीज़ें लाइब्रेरी करने की, लाइब्रेरी क्लास में हमने ये सारी चीज़ें की है ना। तो ये जो बुनियादी तौर पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में हमने दिया हो ना, कैन डिलीट बुक या रिमूव बुक एंड ऑल दिस थिंग्स ना, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन है, तो ये हमने यहाँ पे उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में वो कंडीशन वगैरह को लिख दिया गया है कि जी अगर तो कंडीशन मेट होती है तो तभी ये ऑपरेशन इन्वोक होगा। ये सारी तफसील है, तो हम नॉर्मली आगे भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जब हम इसकी चीज़ें करेंगे। फिर इशू बुक से जी जाहिर है कि ये भी एक से ज़्यादा उसमें इशू बुक करने में जाहिर है कि जी मेंबर का कार्ड आईडी होती है, फिर बुक की है, दोनों को सर्च करके मैच करके फिर वो जो है कुछ जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं किस सीक्वेंस में ना इंटरेक्ट करता है जी। वैलिड आईडी है मेंबर की, मेंबर इज ऑथराइज्ड टू सर्च इशू बुक्स ना, तो वो यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं वो देखते हैं हमने, यहाँ पे आ जाता है इशू बुक है जी, डेटा रिक्वेस्ट की है, मेंबर आईडी है, सर्च मेंबर आईडी है जी, लाइब्रेरी ने इन्वोक करना, जाहिर है कि वो मेंबर लिस्ट को देखा जाएगा, फिर बुक को देखा जाएगा जी, यहाँ पे उसने ओके कर दिए, फिर बुक की डेटा रिक्वेस्ट इन द फॉर्म में बुक, जाहिर है ये लूप में आएगी क्योंकि एक मेंबर है एक से ज़्यादा बुक्स को बारो कर सकते हैं, तो ये बुक बारोइंग एक्टिविटी जो बुनियादी तौर पे वो लूप में है, कुछ ना वो फिर इसी तरह जी इशू बुक है, बुक आईडी पेश की गई है, सारा कुछ ना मेंबर आईडी है, दोनों चीज़ें दरकार है, सारा कुछ ना वो फिर उस पर सर्च करके कैटलॉग में कि है वेरीफाई करके, मेंबर लिस्ट भी वेरीफाई करके, यहाँ पे फिर बुक इशू स्टेटस है जी, मेंबर के हवाले से भी इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है उस ऑब्जेक्ट में, और देन ऑफ कोर्स इशू मेंबर के कॉन्टेक्स्ट में बुक में, ये बुक किस मेंबर को इशू हुई है, मेंबर को आज कौन सी बुक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे फिर वो सारा स्लैंड आ जाता है। तो अब देखें कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी क्लासेस जो है ना वो यूज़ हुई हैं, बट ऑफ कोर्स इन ए गिवन सीक्वेंस ना, वो और ऑपरेशन भी हमने साथ साथ यहाँ पे इंडिकेट किए हैं कि जी जाहिर है कि जी इशू बुक के हवाले से ये कि दो चीज़ें दरकार हैं कि जी बुक आईडी और मेंबर आईडी है सारा कुछ ना, तो मेंबर आईडी पे मॉडिफिकेशन आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, इसी तरह बुक के हवाले से जिस तरह भी हमने बात की थी कि बुक अगर अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में तो वो किस मेंबर को इशू हुई है और उसका स्टेटस भी जाहिर है कि नॉट अवेलेबल आ जाए। फिर इसके बाद हमने रिटर्न बुक्स क्या है जी, इसी तरह हमने जो अभी शुरू में डिस्क्राइब किया था, तो रिटर्न बुक मेथड है जी, नॉर्मली लाइब्रेरी में ही है वो भी, ये सारी चीज़ें करस्पॉन्डिंग बुक ऑब्जेक्ट कैटलॉग से करता है और फिर उसका वही स्टेटस चेंज किया जाता है। अभी जिस तरह हमने बात की थी वो देखा जाता है कि ये बुक होल्ड पे तो नहीं है, अगर होल्ड पे है तो फिर जाहिर है कि उसको फिर प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो ये रिटर्न बुक्स के हवाले से अगर हम देखते हैं ये हमारे पास आता है जी, एक से ज़्यादा बुक रिटर्न होती हैं वो भी इसलिए लूप में है जी, डेटा रिक्वेस्ट है, बुक आईडी दी जाती है जी, रिटर्न बुक आईडी है, लाइब्रेरी ने बुनियादी तौर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सर्च करेंगे कैटलॉग में, फिर यहाँ से ओके हुए मेंबर
सिर्फ बुनियादी तौर पे बुक है जी, किसने इसमें बुक में मॉडिफिकेशन हुई है, देन होल्ड पे तो नहीं थी, ये फिर वो ये जो कंडीशन है कि बुक इज नॉट ऑन होल्ड बुक, एंड देन ऑफ कोर्स वन विल बी एबल टू रिटर्न, और मेंबर के खाते से निकल जाएगी और फिर इसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि जी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना रियल फॉर्म में, और हमें पता भी चल रहा है कि ये कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो किए जा रहे हैं गिवन सीक्वेंस, ताकि हम इन्हीं को यूज़ करते हुए फिर अपने जो है ना क्लास डायग्राम में रिफाइन। अब इसी तरह ये प्लेस होल्ड है, जाहिर है कि ये बुक अवेलेबल नहीं है लेकिन वो उसको रिजर्व करना चाह रहा है, तो उसको जो यूज़ केस है हमें प्लेस होल्ड में किया जा रहा है सारा कुछ ना। होल्ड क्लास है वो हमने पहले से अलग से क्रिएट कर दी थी, शुरू में देखा था आपने, इशूज रिक्वेस्ट ना, और वहाँ पे मेंबर सर्टन बुक है जी, अब क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द होल्ड जी, यहाँ पे फिर होल्ड का किया जाएगा, जाहिर है क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है ना जी, तो होल्ड के इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, और वहाँ पे फिर वो जिस तरह भी हमने ऐड मेंबर और ऐड बुक में देखा था कि जी वो शुरू में नहीं था, और इन बिटवीन जो बुनियादी तौर पे इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, इनिशिएशन होती है साहब, इंस्टेंशिएशन ना, ये यहाँ पे ये है जी आउटकम ऑफ द रिजल्ट कोड, इसको हम देखते हैं कि जी प्लेस होल्ड है जी, डेटा रिक्वेस्ट है, बुक आईडी है, और फिर ड्यूरेशन भी आ जाती है कितने दिनों तक के लिए, बाद दफ़ा कंडीशन होती है कि होल्ड पे कितने दिन जब वापस आती रखी जाती है किताब जी। तो यहाँ पे प्लेस है जी, होल्ड पे मेंबर आईडी है, बुक आईडी है और ड्यूरेशन है, तीन इसके पैरामीटर्स में हमने चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे मेंबर है जी, मेंबर लिस्ट में से देखा जाएगा वैलिड भी है कि नहीं ना, सर्च कर सकते हैं, बुक आईडी है, बुक का स्टेटस वगैरह पता चलेगा कैटलॉग के फॉर्म में ना, मेंबर जी बारो गेट बारो एंड ऑल दिस थिंग्स ना, फिर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फिर वो होल्ड पे आ जाएगा साहब, दोनों पे जो बुक होल्ड की जाती है, तो मेंबर पे भी जिसने बारो की है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे भी फ्लैग लगाया जाता है, बुक पे भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे फिर ये कि जी जब वो बुक होल्ड पे होगी तो ये फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये कैटलॉग में नॉर्मली जिस तरह बुक के बारे में, तो यहाँ पे अब होल्ड के बारे में, होल्ड क्लास में से एक ऑब्जेक्ट इनिशिएशन हुई है और उसमें बुक आईडी एंड देन ऑफ कोर्स द मेंबर आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन रख के फिर वो जो नॉर्मली बुक इज बीन प्लेस्ड ऑन होल्ड। इसी तरह हम देखते हैं कि जी मेंबर्स की ट्रांजैक्शंस हैं सारी कुछ है, तो इसके लिए फिर हमने एक जो होल्ड करने के लिए सारा कुछ है, तो एक नई जो क्लास है हमें देखना पड़ेगा जी, जो नॉर्मली सारी इन्फॉर्मेशन है वो ना मेंबर में नहीं स्टोर कर सकते, मेंबर में बुक के बारे में होगी इन्फॉर्मेशन और बुक के मेंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये सारी ट्रांजेक्शन एंड डेट्स वगैरह की, तो उसके लिए फिर एक अलग क्लास जो है ना बेहतर होगी कि उसको यूज़ करते हुए जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है बुक्स के हवाले से और मेंबर्स के हवाले से, होल्डर बारो के हवाले से, वो नॉर्मली ट्रांजेक्शन प्रिंट करते समय बाद दफ़ा ट्रांजेक्शन हम देखेंगे ट्रांजेक्शन हमने क्लास की है जो कि बुनियादी तौर पे बुक की जो है ना सब क्लास है। यहाँ पे ये है कि जी क्लर्क इंटरेक्ट करता है लाइब्रेरी क्लास से, प्रिंट आउट द ट्रांजेक्शन ऑफ अ गिवन मेंबर जी, एक से ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं सारा कुछ, यहाँ पे हम देखेंगे गेट ट्रांजेक्शन है जी, डेटा रिक्वेस्ट है, मेंबर आईडी, डेट है, गेट ट्रांजेक्शन आईडी, वो सारी इन्फॉर्मेशन है मेंबर लिस्ट से आएगी, मेंबर्स की फॉर्म में, यहाँ पे मेंबर लिस्ट है, मेंबर क्लास ऑब्जेक्ट्स है, तो मेंबर लिस्ट में तो नॉर्मली सर्च करने के लिए किया जाता है ये ऑपरेशन, हमने पहले बात की थी। इस तरह कैटलॉग पे भी तीन ही ऑपरेशंस एप्लीकेबल होते हैं कि ये आप सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह कैटलॉग में भी यू कैन सिंपली ऐड अ बुक, यू कैन रिमूव अ बुक एंड देन यू कैन सर्च अ बुक ना, तो ये यहाँ पे फिर मेंबर्स के जितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस पर देता है सारा कुछ ना, तो इसका वो इटरेटर एंड देन ऑफ कोर्स ये ट्रांजैक्शंस को नॉर्मली देते हुए हम देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को कैसे, ये था जी हमने देखा अभी तक। अब हम आते हैं कि जी क्लासेस एंड रिलेशनशिप्स, हमने एक दो क्लासेस नई ऐड की हैं, सीक्वेंस डायग्राम से हमें पता चल गया कि जी किस सीक्वेंस में नॉर्मली सारी क्लासेस क्रिएट होती हैं, कुछ जो शुरू के वक्त में इनिशिएशन होती है, कुछ ऑन दी फ्लाई डायनामिकली इनिशिएशन होती है, तो सारी क्लासेस वगैरह जो है हम वो बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। फिर उनके पास हमारी एसोसिएशन भी ज़ाहिर है सीक्वेंस में, जब हम देखते हैं कि जी कैसे जो एग्जीक्यूट होगा, जो भी यूज़ केस डिस्क्रिप्शन हमारे पास थी उसको देखते हुए हमारे पास ये जो क्लासेस हैं ये हमारे पास आती हैं कि जी लाइब्रेरी है, और एसोसिएशन भी देख सकते हैं, लाइब्रेरी के पास मेंबर लिस्ट है, लाइब्रेरी मेंबर लिस्ट में मेंबर्स होते हैं जी। इसी तरह लाइब्रेरी कैटलॉग मेंटेन करती है बुक्स के बारे में, जाहिर है कि जो बुक क्लास है और जो मेंबर है ये बुनियादी तौर पे कुछ बुक्स को होल्ड कर सकता है, मेंबर जो है ना नॉर्मली वो ट्रांजेक्शन वगैरह जिससे हमने पहले बारो किए तो होल्ड को तो रखना पड़ता है क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो बारो तो इसी में आ जाती है मेंबर में और बुक में, तो फिर ये यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन की हमने क्लास
کی تھی, اور وہ ایک جو ایکسٹرنل نارملی انٹرفیس کلاس ہے وہ ظاہر ہے کہ باہر یوزر کے انٹریکٹ کرنے سے, یہاں پہ سارا کچھ لائبریری اور باہر کی جو کلاس ہے وہ نارملی باؤنڈری کلاس کے پرسپیکٹو میں یوزر انٹرفیس کلاس ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے جی ساری ریلیشن شپ ہے. لائبریری کیا ہے جی, مینٹین کرتی ہے ممبر لسٹ کو اور کیٹلاگ. ظاہر ہے کہ 1 to 1 ہے, ایک سے اگر کیٹلاگ ہو تو پھر اسٹار آ جائے گا. یہاں پہ ممبر لسٹ میں جی ظاہر ہے کہ ممبرس کلاس اور 1 to many ریلیشن شپ ہے. یہاں پہ جی ممبر جو ہے چیکس آؤٹ, ایک سے زیادہ بکس ہے وہ دیا ہوا سارا کچھ. اسی طرح ممبر ہے ایک سے زیادہ بک کو ہولڈ کر سکتا ہے. بک ہے جی ظاہر ہے کہ جی وہ ایک سے زیادہ ہولڈ ہو سکتی ہیں بک پہ, یہاں پہ 1 to many دیا سارا کچھ نا. یہاں پہ بھی کیٹلاگ ہے جی, کیٹلاگ میں ایک سے زیادہ 1 to many ریلیشن شپ ہے سارا کچھ نا. تو یہاں پہ پھر یہ کہ جی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کا وہ نہیں کیا ہولڈ کو ایز سچ. نارملی یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے کیونکہ یہ ساری انفارمیشن بک کے حوالے سے اور اس کی ایسوسیشن ہے بنیادی طور پہ ممبر اور بک کے پرسپیکٹو میں. تو یہ کلاس جو ہے نا ان ایسوسیشن ٹو دیز تھنگس, ہم نے پھر انڈیپینڈنٹ کلاس کریٹ کیا, ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سارا کچھ نا. ویئر ایز آن دا ادر ہینڈ یہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے یہ اس کی سب کلاس ہے کیونکہ یہ ٹرانزیکشن ہے بک پہ ڈپینڈ کرتی ہیں ساری ٹرانزیکشنز نا. تو اس کو پھر ہم نے جی یہاں پہ جو ہے اس کی سب کلاس کے سمبل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی کلاس سب کلاس کے ریلیشن شپ دی ہوتی ہے, ڈپینڈنسی اس کی جی اس کے پرسپیکٹو میں. تو یہ ہمارے پاس ہے جی بنیادی طور پہ ہم نے ریفائن کلاس ڈائیگرام, ایک دو چیزیں مسنگ تھیں. اس طرح ہم نے دیکھا ڈومین ماڈل میں ہمارے پاس ممبر لسٹ بھی نہیں تھی, کیٹلاگ بھی نہیں تھی. یہاں پہ ہم نے کی ساری چیزیں اور یہاں پہ پھر ہم نے ایک ٹرانزیکشن ایڈ کیا تھا کچھ. سو سم ریکارڈ آل دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن اکارڈنگلی نا. یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اسی کو پھر بنیاد بنائیں گے جی ان ساری کلاسز کے ایٹریبیوٹس وغیرہ, اور کچھ کے تو ہم نے شروع میں جس طرح بک وغیرہ کے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہی پتہ چل سکتے ہیں نا, بک کی آئی ڈی کے حوالے سے. اسی طرح ممبر کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن, نیم آئی ڈی ہے, فون نمبر ایڈریس ہے سارا کچھ نا. اسی طرح بک کا ٹائٹل آتھر ہے سارا کچھ نا, اور اسپیسیفک آئی ڈی نمبر جس کا بک کا اس کو کہا جاتا ہے. باقیوں کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ انٹریکشن ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی انفارمیشن آئے گی, کیا ریٹرن ویلیو آئے گی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ریفائن کرنی ہے کلاس ڈائیگرام, تو ہم نے اس کو بنا لی ہے. اب اس میں جو ساری چیزیں ہیں آپریشنز وغیرہ جو ہمیں جو میتھڈز وغیرہ وہ دکھا دیں ہیں جی. اب یہ ہم سیکوینس ڈائیگرام ابھی جو ہم نے دیکھی ہیں ان کی مدد سے ہم جو ہے نا نارملی ہم میتھڈز وغیرہ نا دیز کلاسز کر سکتے ہیں ہم نا. اور نارملی ایٹریبیوٹس وغیرہ وہ بعض دفعہ یہ کہ وہ لینگویج ڈپینڈنٹ اسپیسیفک کلاس چوائسز وغیرہ کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ہم پہلے جو ہے ٹرانزیشن کرتے ہیں فرام سافٹ ویئر کلاسز ٹو دا امپلیمنٹیشن کلاسز کے پرسپیکٹو میں, اور اسی کے دیکھتے ہیں کہ جی ہم پہلے ایگزامن کریں گے میتھڈز وغیرہ کو, اور پھر ہم جو ہے نا انہیں کی مدد سے پھر ہمیں ایٹریبیوٹس کا زیادہ طور پہ بہتر طور پہ پتہ چلے گا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو نا. نارملی تو میتھڈز ہیں وہاں پہ ہم کلیکٹ کریں گے سیکوینس ڈائیگرام سے سارا کچھ ہی نا وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ساتھ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ریٹرن ٹائپس ہے وہ بھی بتا دیا جائے نا سارا کچھ نا, تاکہ وہ کہ وہ سیکوینس ڈائیگرامز میں نہیں تھا لیکن ہم اسی مدد سے فلو کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں سارا کچھ نا. یہ ہمارے پاس سب سے پہلے جی لائبریری کی ہمارے پاس ہے. لائبریری بنیادی طور پہ یہ اس کے ہم نے آپریشنز وغیرہ لکھے سارا کچھ, ایڈ بک ہے سارا کچھ نے. ابھی ہم نے 3 جو ویزیبلٹی کی باتیں کی تھی نا سارا کچھ نا, تو ان کو دیکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ ریموو بک ہے, ریٹرن بک ہے, ایشو بک ہے, ایڈ ممبر ہے, ایڈ بک ہے سارا کچھ نا, پلیس ہولڈ ہے. یہ ساری مین ایکٹیویٹیز جو ہے نا لائبریری میں لائبریری کلاس میں کی جاتی ہے. گیٹ بک سے سارا کچھ نا, اور ساری اس کے ساتھ میں ہم نے ریٹرن ویلیوز ٹائپس بھی انڈیکیٹ کی ہیں سارا کچھ نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جی نارملی یہ جو ہے وہ انٹرفیس ہے بنیادی طور پہ دیکھتے سارا کچھ نا. یہاں پہ اس کے ریفرنسز ہیں, تو یہاں پہ ہم نے وہ ریفرنسز بھی لکھے ہوئے کہ جی جو لائبریری کلاس ہے بنیادی طور پہ وہ جو کیٹلاگ کو اور ممبر لسٹ کو ریفر کرتی ہے, اس میں ریفرنس وغیرہ کو ہم نے وہ لکھ دیا ہوا سارا کچھ نا, صرف اسی کے لیے, اس لیے نارملی وہ پرائیویٹ ہے. اسی طرح جی ممبر کلاس ہے, ممبر کی اس طرح بھی ہم نے بتایا کہ جی وہ نون ہی ہے, اس سے کہ اس کے نیم ہے, ایڈریس ہے, فون ہے, بک ہے, اور ظاہر ہے کہ جی ممبر آبجیکٹ کی ساری چیزیں پرائیویٹ ہیں, اس لیے پھر ہم نے وہ دیا ہوا ہے. اور بیسک اس پہ آپریشنز وہی ہیں جی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر ہے, اور نارملی ممبر کے پرسپیکٹو نیم اسٹرنگ ایڈریس اینڈ آل دس تھنگز پیرامیٹرز ہیں, وہ ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری تفصیل ایک پیج پہ تو نہیں آتی, تو ہم کلاس ڈائیگرام وداؤٹ آپریشنز
اور اس کا جو ورک فلو ہے ریلیشن شپ تو وہ شو کر دیتے ہیں. پھر علیحدہ جو ہے نا کلاسز پہ، کیونکہ انہیں کو ہم بیس بنائیں گے آگے جو اس کو اس کی کوڈنگ کے حوالے سے نا انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے. یہاں پہ یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہم نے لکھ دیے سارا کچھ. اسی طرح بک کے حوالے سے یہ ہمارے پاس اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور بک پہ بھی اسی طرح آپریشن آ سکتے ہیں. گیٹ ٹائٹل آتھر ہے سارا کچھ نا بارور ہے، اینڈ دین آف کورس ہولڈ کے پرسپیکٹو میں نیکسٹ ہولڈ کیا ہے سارا کچھ ہے نا، رینیو ریٹرن ایشو بک اینڈ آل دیس تھنگس نا. پھر اسی طرح ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ جی کیٹلاگ میں ظاہر ہے کہ جی بکس کا بنیادی طور پہ لسٹ کے پرسپیکٹو میں آ جاتی ہے سارا کچھ نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جی ریفرنسز وغیرہ کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں اس کے. پھر اس پہ آپریشن کیا سرچ کرتے ہیں، ریموو ہے، انسرٹ ہے، گیٹ بک اینڈ آل دیس تھنگس نا. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایٹریبیوٹ ہے وہ لسٹ کی فارم میں ہی آئے گا بکس کا. اسی طرح ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ممبر لسٹ ہے جی، یہاں پہ ممبرز ہے، اینڈ دین آف کورس ٹائپ لسٹ ہے. یہاں پہ اس کے ایٹریبیوٹس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس سرچ انسرٹ گیٹ ممبرز. آپ دیکھیں رییوزیبلٹی کے آپریشنز وغیرہ جو ہے نا، جس طرح ممبر لسٹ میں بھی ایڈیشن ڈلیشن اینڈ دین آف سرچ ہوتی ہے، اسی طرح بک میں بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جو کوڈ ہے سارا کچھ نا رییوزیبلٹی کے ایشوز بڑے آسان ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں میتھڈس کو یوز کر سکتے ہیں. اور پولیمارفزم میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ اپان دا آبجیکٹ ان کلاس نا اس کو پھر کیسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے سارا کچھ نا، یہ دیکھتے ہوئے نا. یہاں پہ پھر جو ایک جو رہ جاتی ہے وہاں پاس جو ہولڈ ہے جی، ممبر ہے جی، نارملی بک ہے. اینڈ یہاں پہ ہم نے وہ جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جاوا والا وہ چوز کیا وہ یہاں پہ کیلنڈر کے پرسپیکٹو میں ڈیٹ کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں چیزیں. تو یہاں پہ بھی پھر یہ ٹرانزیکشنز کرنا. تو یہ پھر ہمارے پاس جو ساری یہ آپریشنز اور ایٹریبیوٹس کی تفصیل آ گئی ہے. تو یہ اب پھر آگے جو ہے جی ہم ڈیٹیل ڈیزائن میں اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جی اس میں پھر ہم یہ کیسے جتنے بھی یہ جو اس کے پروسیسز وغیرہ اس کی ڈیٹیلز وغیرہ فلو چارٹ کی فارم میں یا ڈیسیژن ٹیبل کی فارم میں یا نارملی اسٹرکچرڈ انگلش میں دیکھتے ہوئے پھر یہ بیسیکلی ڈیزائن ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.